Yes. Yeah, 3 months only it took for me to cultivate. 25 gram is sufficient to cultivate water acre. 50 gram of chia. How much time does it take? 3 months, Babaji. And how much It it doesn't require any fertilizer, chemical, nothing is required. Not And chemical. in this case, how much time did it take? 3 months. 3 months. छोटा होता है, बड़ा होता है, जिसका रंग ऐसा होता है, ऐसा नहीं। और चक्की वाला जब खाता है बाजू वाला किसान फल तो इतना होगा, आप तोड़ते जाओगे और आता जाएगा। बहुत अच्छा। कितने एकड़ में किए? जी तो घर के लिए लगा है। घर के लिए बाबा जी ये देखें, ये नीलम वैरायटी जो है विदेशी है, अपने इधर मतलब हमारे एमपी में कोई भी इतना साइज का नहीं होता। ये शिवयोग सी इतना बड़ा हो गया, आप किसी से भी पूछ लें, टेस्ट छोटा रहता सर नीलम। जरा अभी इतना, और अभी तो और बढ़ेगा नहीं, ये तो पक गया, मगर पहली साल इसको हीलिंग दी है, नेक्स्ट ईयर इसका इतना बड़ा काटो, जरा काटो। पहले इसको ये जो है ये और How is it? How is it? Huh? माइक दे दो। नमः शिवाय बाबा जी। गोवा की पावन धरती पर बाबा जी आपका स्वागत है। Thank you. इस मौके पर Oh, thank you very much. ये उषा जी ने बनाई हुई पेंटिंग है आपके स्वागत में। इस मौके पर हम गोवा के ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री विजय सरदेसाई जी, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ गोवा श्री जयेश सलगांवकर जी और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर एकनाथ चाकुरचर जी हमारे साथ हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप बाबा जी का स्वागत करें। Thank you very much. Tell me. On behalf of the government of हम ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री विजय सरदेसाई जी से आग्रह करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की ओर से शिवयोग कृषि क्रांति के बारे में 2 शब्द आप कहें। डॉक्टर अवधूत शिवानंद जी, हमारे परम पूज्य बाबा जी, माय कलीग द मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट मिस्टर जयेश सालगांवकर, the head of the Indian Council of Agriculture Research in Goa, Dr. Chakurkar, and
the esteemed audience, Om Namah Shivaya. It gives me great pleasure to welcome Babaji on behalf of the government of Goa, on behalf of the people of Goa, on behalf of the farmers of Goa, to Goa, which is the jewel in the crown of the country. Goa is not known for farming, but we want to be also known for farming from now on. What we have seen, the testimonials given by various farmers from different regions of India, especially regions which have been prone to drought, which have been prone to have maximum farmer suicides. All this makes us believe that there is a science beyond science. And Shiv Yoga Krishi may be and is surely perhaps the next thing that will take agriculture forward in the country. The founding father of the United States, Thomas Jefferson, had once said that, agriculture is perhaps the wisest thing that is being pursued by the government of the United States, because eventually it creates good wealth, real wealth, good morals and happiness. So, people believe that if there is no farmer, there is no food and there is no future. So, for agriculture independence, especially when it comes to self-sufficiency in food, and to have food which is safe, because today there is a question whether the food that we consume is actually food or poison. And Goa is a progressive state. It is a state which the National Commission on Population says has the best quality of life than anywhere in the country. So in such a state, I believe it is the duty as the government that we need to have safe food. We need to have more food that we produce, because we are not agriculturally independent. Although Goan economy has its basis as an agrarian economy. So we have the interest to double the farmer's income, as is the stated position of the Honorable Prime Minister, that by 2022 they would want to double the income of the farmer. But here it is not only doubling the income, it is reducing the cost, and it is also giving safe food. So I think this is the best thing that can happen to the country, to the state. And just like I made a mention of the founding father of the most powerful nation in the world, Babaji may eventually be proven as the founding father for India's agriculture independence, which is why I and the people of Goa are blessed to have Babaji amongst us. We are known to be Sushagad, which means laid back. We are not lazy, but we are a little laid back. Now on, it will be our endeavor to use Shiv Yoga Krishi and to take agriculture forward in the state. For this, my government is committed to allotting, we have been allotted organic farming clusters. These are not only organic farming, these are clusters under a scheme of the central government called the Paramparagat Krishi Vikas Yojana. And in this, Shiv Yoga Krishi is a recognized model by the government of India. We as the Goa government would be willing to allot these organic clusters to Shiv Yoga Krishi to show the people of Goa. Eventually, seeing is believing. So I wanted more farmers from Goa to come and see this today. I think many have come. Many may have not come. But when these clusters see the light of the day, I think people will be able to see and experience what has been
propagated as Shiv Yoga Krishi, which is the next agriculture revolution in the country. Thank you very much. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Somebody asked me, why do you say Namah Shivaya? I said the ancient culture which we belong to, it should be followed. Like in Islam, when they meet you, they say, Salaam alaikum. And the other person say, Wa alaikum salam. What is the meaning? It's a very deep meaning. Ki aap salamat rahe. May God protect you. Salaam alaikum. उसी तरीके से पंजाब में चले जाते हैं. So they want to remember the infinite. So they say, Sat Shri Akal. Now, quickly they say Sat Sri Akal. They say Sat Shri Akal. So the one who is infinite, he is the truth. From USA, we received the culture hollow. And this came from where? When there was a gold rush. So the cowboys, they all had the guns. And the fast gun, he runs the city. So when two fast guns means how you, what they do it? So, to ensure that I'm not going to take out my gun because it's a right hand, and you don't take out gun from your side, so dono हाथ पकड़ते एक दूसरे का. This is how the hello. In the ancient Buddhist philosophy, they do like this. When you touch both the hands and touch to the Anahat Chakra, they say Namaskar. And the Shiv Yoga Sanatana, we say Namah Shivaya. The meaning is that I bow down to the God who is present in you. So I see the God in every human being. I see the Supreme in every human being. That is why, with respect, with humbleness, I say Namah Shivaya. मैं जितने भी हमारे किसान आए हैं, मैं तसल्ली से आपको शिव योग की दीक्षा दूंगा. पूरे जोर शोर से. और आज के बाद देखना कि गोवा में आयरन ओर माइनिंग नहीं होगी, गोल्ड माइनिंग शुरू हो जाएगी. एडमेंट. और अगर सभी लोग कर रहे हैं तो बीइंग ए नागरिक ऑफ द कंट्री, लेट मी ऑल्सो join the good work here and 500 clusters. Even I will spend maximum time to ensure that all the farmers, they produce super organic and let the state be known. तो अभी पहले मैं थोड़ी चर्चा करूंगा जो साइंटिस्ट आए हैं उनके साथ शिव योग के बारे में, क्योंकि शिव योग फार्मिंग है क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो इसलिए पहले साइंटिस्ट को बताना बहुत जरूरी है. शुरुआत कैसे हुई शिव योग फार्मिंग की? जब सभी लोग कंसर्न थे कि फार्मर्स, क्योंकि 70% हमारे देश के नागरिक जो है गांव है, देहात है, और जो बच्चा जवान होता है तो माँ बाप को चिंता होती कि इतना तो कमाई होगी नहीं, बच्चे ज़्यादा हो गए, तो गांव से पलायन हो गया, बड़े बड़े शहरों में आ गया. और घर में कितना खुली हवा, कितना
दूध, कितना खाना, कितना अच्छा। और शहर में एक छोटी सी खोली में द क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज गॉन डाउन बिकॉज द वो यंग मैन हैज टू अर्न। और अगर वही अपॉर्चुनिटीज उससे कई गुना ज्यादा वहां अगर 30,000 रुपए की 40,000 की पगार कर रहा है, तो मैंने कहा अगर मैं शिवयोग फार्मिंग इंट्रोड्यूस कर दूं गांव में, तो उसी खेत में 30-40 एकड़ में 25-30 लाख रुपए की फार्मिंग करें। हरियाणा में हुआ, एक वाइफ हस्बैंड थे, वो लेक्चरर था, तो वो बोला बाबा जी इतना हाई यील्ड और हॉर्टिकल्चर करूं, मैं कॉम्बिनेशन करूं तो मैं तो 50-1 लाख कमा लूंगा, तो मैं गांव जाता हूं, आई विल चेक द जॉब। तो उसकी बीवी साथ में थी, वो मेरे को ऐसे कहते डोंट अप्रूव। ऐसे नहीं, गांव में भी अगर तुम्हारे पास 40-50 लाख साल की इनकम होगी, कितना, ये जरूरी नहीं कि हर किसी की होगी, जितना फार्म होगा, जितना प्रोग्रेसिव होगा, तो मैंने कहा तुम उसी गांव में बड़े सारे क्वालिटी ऑफ लाइफ वहीं पैदा करो। तो मैंने शिव योग फार्मिंग के लिए मैंने कहा मैं करूंगा। शुरुआत जब हुई तो हमारे और जो शिव योगी हैं उन्होंने कहा बाबा जी प्रूफ लेके चलते हैं, थोड़ा अच्छा रहता है, सर्टिफिकेट हो, प्रूफ हो। तो पूछा गए, साइंटिस्ट से बात करी, ये ऐसे होता है, कहते पागल हो क्या, सॉरी कल आना। और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में गए 3-4 में, हमारा 1.5 साल निकल गया, 1.5 ईयर। फिर मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा बोलो ये बताओ मुझे क्या एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के लिए काम करना है कि किसान के लिए काम करना है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ, किसान के। मैंने कहा इस उम्र में क्या मेरे को सर्टिफिकेट लेके तख्ती टांग के जाऊंगा क्या? आई डोंट नीड इट, मेरे को ले चलो। तो ये जो आए हैं ना किसान, शुरुआत का टाइम है नरसिंहपुर गांव, सबसे छुपा हुआ गांव है मध्य प्रदेश में। मैंने मुझे ले चलो, तो आड़त मंडी थी, वो आड़ती बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा आप यहाँ का। तो जहाँ वो गेहूँ गिराती है ना ढेरियाँ, वहाँ पंडाल की जरूरत नहीं थी, शेड था, वहाँ मैंने किया। और आज आप देखो कितने खुशहाल हैं। मोस्टली लोगों के पास मारुति कार होगी, पक्का घर बांध लिया होगा, और सारे हेल्दी होंगे, दे आर रिकॉग्नाइज्ड। तो जब मैंने किया तो उसके बाद प्रेस वाले जो है, मीडिया प्रूफ मांगता है। और आजकल मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इन्वेस्टिगेटिव मीडिया हो गया, कि ऐसा तो नहीं कि 2-4 अपने लोग खड़े कर दिया। ये जहां भी शिवयोग कृषि हुआ तो दे टुक टाइम, अपनी टीम्स भेजी खेतों में। तो दैनिक जागरण था और भी 2-4 अखबार, मुझे याद नहीं है। जब वो देख के आए तो उन्होंने खूब छापा शिवयोग कृषि, शिवयोग कृषि। उसके बाद मैंने कहा अब मैं, वो गांव की कहावत है ना, सतुआ पिसान लेके मैं तो पोटली बांध के निकल रहा हूँ। पहले जमाने में भी ऐसे ही होता था, याद है ना, कि कहीं जाना है तो ब्रीफ केस, और आजकल तो हो गया। पहले क्या होता था, एक लुंगी हुई, उसी में कपड़ा डाला और उसमें सत्तू डाल देते थे। सत्तू जो है, भूख लगी तो उसमें पानी डाल के, चने का सत्तू है, खाना खा लिया, गर्मी लगी तो जौ का सत्तू, गर्मी नहीं लगेगी, सतुआ पिसान, तो उसी में आटा, तो वो डाल के मैं तो निकल रहा हूँ। लिटरली मैं ऐसे निकल गया। मैं मध्य प्रदेश में घुस गया, फिर मैं महाराष्ट्र में घुस गया, और उसके बाद मैं गुजरात में घुस गया, फिर हरियाणा में, राजस्थान में, फिर असम में, कोई जगह छोड़ी नहीं। एक चीज अच्छी हुई, किसानों को जब फायदा होना शुरू हुआ तो मुझे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की इनविटेशन आने लगे। तो वो वाइस चांसलर्स जैसे आसाम के एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, जबलपुर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जूनागढ़ है,
ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज की आप हमारे को प्लीज एड्रेस आवर साइंटिस्ट। तो फिर मैंने उनको बताया कि ये जो कन्वेंशनल आप जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये ऑब्सोलीट हो चुकी है। एंड दे एग्रीड। उन्होंने कहा हमारी जो सबसे बड़ी चिंता है कि जमीन बैरन होती जा रही, बंजर होती जा रही है, एक्सटेंसिव पेस्टिसाइड, एक्सटेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर से, और आने वाले टाइम में फसल उगेगी नहीं और ग्राउंड वाटर पॉइजनस होता जा रहा है। हमने अब वीडी साइड जो है, वीड्स जो खरपतवार होती है उसको ख़त्म करने के लिए हमने और केमिकल्स डालने शुरू किए जिससे रेप्टाइल्स मर गए हैं। रेप्टाइल मर गए हैं तो सिल्ट रिवर्स में डिपॉजिट हो रहा है। आज मैं स्टेज के माध्यम से जो पंजाब के जो साइंटिस्ट हैं मैं उनको क्वेश्चन करना चाहूँगा कि भाखड़ा नंगल डैम जो है वहाँ सिल्ट बहुत जमा हो रहा है, फार्मर्स प्रोग्रेसिव है और माइंडलेस पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हो रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ सिल्ट डिपॉजिट ज़्यादा हो जाए और वो सारा जो अरबों रुपए का डैम प्रोजेक्ट है वो फियास्को में बदल जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा ये हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है मैं काम करता हूँ। तो हमने बड़े जोर शोर से काम किया, किसानों ने भी काम किया, रिजल्ट बहुत जबरदस्त आने लगे। मूंगफली की खेती होती है गुजरात में, डरते डरते भी करी उन्होंने, कीड़ा ना लग जाए। और जब मैं 3-4 स्टेट में आगे निकल गया तो 4-6 महीने बाद मेरे को खबर आई कि जिस एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में गया था अब वो फिर से प्रोपोगेट कर रहे हैं कि इतना यूरिया डालो, इतना डीएपी डालो, इतना पेस्टिसाइड डालो। तो मैंने फिर हवाई जहाज पकड़ा, मैं वहाँ गया, मैं बोला साइंटिस्ट को आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्लीज़ देखो मैं कितनी मेहनत करके गया था, किसानों को कितना भला हो। वो बड़े ट्रूथफुल थे। उन्होंने कहा देखिए शिवानंद जी, अब्दुल शिवानंद जी, हमारी जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, या कोई भी इवेंट होता है तो उसको स्पॉन्सरशिप जो है केमिकल फर्टिलाइजर की कंपनी करती है या पेस्टिसाइड्स की कंपनी करती है। अगर हम ये ट्रेडिशनल शिव योग फार्मिंग को प्रोपोगेट करेंगे तो हम एक भी इवेंट की फंडिंग नहीं ले सकते। वी आर वेरी सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। मैंने कहा बात तो सच है। तो मैंने कहा मैं और जोर से काम करूंगा। फिर मैंने मीडिया को अप्रोच किया, दे वर ट्रूथफुल, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी करी और सबने हाथ खड़े कर दिए ऐसे करके। मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि आपकी पद्धति का नाम है शिव योग और शिव योग रिप्रेजेंट करती है एक पर्टिकुलर रिलीजन। So today I am going to explain to you what is शिव योग। और हो सकता है YouTube के माध्यम से मीडिया भी इस चीज को सुने। ये शिव योग है क्या? हर कंट्री की एक स्पेशल यूएसपी भी है और एक एंशिएंट पावर है कल्चर की। जापान की है, इसको बोलते हैं ज़ेन। चाइना की है ताओ, शाओलिन। हालांकि इसमें भी एंशियंट शिव योग सनातन के साधुओं का बहुत कंट्रीब्यूशन है, आप डिटेल में जाना। तो फिर इंडिया की कौन सी है एंशियंट? तो वो एंशियंट पद्धति
right from the time of pre-religion. I'm mentioning that when it was not those religions which were present now, and that Paddhati was called Shiva Yoga. तो उस शिवयोग पद्धति, शिवयोग is not a religious. शिवयोग is a practice. अब ये प्रैक्टिस किस चीज की है? फायदा क्या होता है? जो ज़ेन है या ताओ है, यहां से ही गए थे साउथ इंडिया से शिवयोगी। तो उन्होंने कहा था कि अर्थ एनर्जी, जो 5 एलिमेंट्स की एनर्जी है, और कॉस्मिक एनर्जी, इसको आप टैप करते हो तो इनविजिबल हो जाते हैं। तो हमारे एंशिएंट टाइम में जितने भी महर्षि थे, अभी बहुत सारा ब्लेंड कर दिया, कचड़ा कर दिया, जाति पाति का ऐसा कुछ भी नहीं था। दे वर ऑल yogis, the great yogis. वो शिव योग practice was of the immortals, वो immortals थे। और ये तीनों फिलॉसफी और भी हैं, वो तीनों फिलॉसफी जो है they are based on one thing, जो एल्डर्स ने बताया। वाटर इज फॉर फिश, मछली के लिए क्या जरूरत है? पानी की। एयर इज फॉर बर्ड, हवा चाहिए, हवा नहीं होगी तो पंछी नहीं उड़ सकता। एंड व्हाट द ह्यूमन बीइंग नीड्स, कॉस्मिक एनर्जी इज फॉर ह्यूमन बीइंग। और उसी को एंशिएंट टाइम में, चाहे वो योगी हो या वॉरियर्स हो, उसको प्रैक्टिस करते हैं, शिव योग प्रैक्टिस। इसलिए मैंने कहा कि पहले वो सनातन जो है वो भी कोई धर्म, वो बांधने की चीज नहीं थी। सनातन इज ए वे ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव योर लाइफ। वो सिखाता है, देयर इज नो डूज एंड डोंट्स। कोई ऐसा नहीं है सनातन कि मंगलवार को ये नहीं करना, बुधवार को ये नहीं करना, बृहस्पति को ये नहीं करना। इट ऑल लेटेस्ट नॉनसेंस है। इट इज मेडिटेशन ऑन द सेल्फ। क्योंकि जो फिलॉसफी थी सनातन की कि जो गॉड है, जो शिवा है, वो निर्गुण निराकार है, द लाइट, एंड दैट लाइट इज प्रेजेंट विद इन यू। तो हम लोग सारे जो था, और उसमें जो मेडिटेटिव पाथ था, अवेकनिंग ऑफ माय इनफाइनाइट पावर्स, उसको कहा जाता था शिवयोग सनातन। तो मोस्टली जो राजा होते थे, उनके बेटे इसको ज्यादा प्रैक्टिस करते थे। इजिप्ट में भी आप देखोगे तो प्रिंस प्रिंसेस जो है वो इस कॉस्मिक एनर्जी की प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि शिव योग आपको मालूम चले। देन आई एम गोइंग टू कम टू एग्जैक्ट साइंस ऑफ शिव योग। आई विल बी टॉकिंग टू ऑल द मेडिकल साइंटिस्ट, आई विल बी टॉकिंग टू ऑल द एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। इजिप्ट में जो पिरामिड बने हैं, जहाँ ममीज होते थे, रखे जाते थे, वो इसलिए नहीं बना था कि कोई राजा मर गया तो उसको, लेकिन जो पिरामिड स्ट्रक्चर होता है उसकी एक खासियत होती है कि वो कॉस्मिक एनर्जी को, एंशिएंट टाइम में इजिप्शियन सिविलाइजेशन इज नोन टू बी वेरी इवॉल्व। द इंडियन civilization is known to be very evolved. The Chinese civilization is known to be very old and evolved. और उसी से जो है जापानीज ने इनको अपने अंदर लेके आया। तो कॉस्मिक एनर्जी, उसमें किंग चैम्बर होता है, जो पिरामिड का सेंटर, तो उसमें जो कॉस्मिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है। कॉस्मिक एनर्जी जो है, इसका मायने क्या है? ये जीवन का, it builds the life.
तो जितने भी प्रिंसेस होते थे, रिवर नाइल, इसमें बड़े क्रोकोडाइल्स भी होते थे, पहले उनको वॉरियर मेथड से उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता था, फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड दे वुड जंप इनटू द रिवर और स्विम करके बैंक ऑफ द रिवर नाइल, उसके अंडर वाटर टनल्स होती थी विच नोबडी कैन सी, उससे वो पिरामिड के अंदर जाते थे, एंड दे यूज्ड टू राइज अप टू द किंग्स चैम्बर। वहां बैठ के वो मेडिटेशन करते थे, तो उनके अंदर बहुत सारी साइकिक पावर्स आती थी। फैरोज जो बोलते हैं, जो मोजेस हुआ, तो देयर वाज ए एक्सचेंज ऑफ मैजिकल पावर्स। तो वो अपने को, क्योंकि वो भगवान की तरह पूजा जाता था, उनमें रजोगुण का वो होता था। लेकिन इंडिया में जो है, अब इंडिया में खाली मैप की बात नहीं करूंगा मैंने इससे इंडिया, बिकॉज इट इज जम्बू द्वीप है, भारत खंड है। तो जितने भी किंग्स हुए हैं, उनके जो बेटे हैं, जितने भी किंग्स थे, दे वर फॉलोइंग ए पद्धति फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, इज अ सनातन पद्धति। और उनके बेटे फिर कहते थे कि आई हैव टू कंप्लीट माई जर्नी फ्रॉम फाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो खाली पावर्स तक नहीं रुकना, खाली वो मैजिकल पावर्स तक नहीं रुकना, पर इवॉल्व होना। तो वो लोग फिर जो है शिव योग सनातन का करते थे और तपस्या करते थे। तो वहां से ये पद्धतियां आगे बढ़ी। मैं पिछले 60 साल से, from last 60 years, I am continuously practicing Shiv Yoga Sanatan, because क्योंकि it's my good luck कि वो जो शिव योग लिनेज के गुरु ने आकर के, वो सेंट ने आकर के मुझे दीक्षा दी, मुझे कुछ बताया भी नहीं, और साधना कराई, और साधना कराते गए, और ये बोला हमेशा योगी रहना, गुरु नहीं बनना, अच्छे काम करना, और जब तुम्हें लगे तुम अच्छे कार्य करने योग्य हो गए हो, तो सर्व द यूनिवर्स, serve the universe, serve the nature, and serve the humanity. Universe, you may call it God, जो भी आपका फेथ है, जो भी आपका रिलीजन है, आप उसका नाम ले लो। चाहे मैं क्राइस्ट कॉन्शियसनेस की बात कर लूं, चाहे मैं शिवा कॉन्शियसनेस की बात करूं, It's a universe, cosmos, serve. और कैसे सर्व करना है? Bring the light and merge that light, connect that light with the earthly plane, connect that light with all those who are depleted of the cosmos. गुरु बन जाऊंगा तो क्या हो जाऊंगा? दूर हो गया। I have to serve. आज भी आप में से कोई एक ऐसा बताए जिसको मैं कोने में बुला के मैं दीक्षा दे रहा हूं? करा क्या मैंने इससे? क्या मैंने किसी को आके कहा ये मेरी फोटो है, इसको रखना, इसकी पूजा करना? We are very honest yogis. We serve the humanity. सबके लिए जो है शिव योग, और वही कल्चर जो शाओलिन टेम्पल्स में गया, आज तो वॉरियर्स हो गए शिव योगी, तो उन्होंने वो सिखाया। उस समय जो मॉन्क थे, अब बुद्धिस्ट कहते हैं, पर गौतम बुद्ध भी हमारे शिव योग सनातन के राजा के बेटे थे, यहीं से उत्पन्न हुआ था बुद्ध धर्म, लेकिन पहले तो वही सनातन था। तो उनको राजा को कहा था कि प्रैक्टिस करो। जब उन्होंने देखा कि ये
शिव योग सनातन की प्रैक्टिस करते हैं तो इतनी कॉस्मिक एनर्जी आ जाती है, इतनी पावर आ जाती है कि व्हाई नॉट टू टीच टू द वॉरियर्स। तो उसके बाद ये जो फाइटिंग है, मेथड्स है, जो स्किल है, चाइना में कॉन्टिन्यूसली मास्टर करते गए, हम लोग कॉन्टिन्यूसली उसको भूलते गए और हम लोग कॉन्टिन्यूसली जाति पाति धर्म के पचड़े में फंसते। मैंने बहुत समय मेहनत करी। एक तो शिव योग कृषि, किसान बड़े सीधे सिंपल होता है, मुझे कोई डर नहीं, खतरा नहीं, क्योंकि उस बेचारे को जब दीक्षा देता हूँ ना तो वो अपने खेत में भला करता है, अपनी खेती बढ़ाता है, खुश होता है। और शहर के लोगों को जब शिव योग सिखाता हूँ, हीलिंग सिखाता हूँ, तो फिर कोई झूठे मूठे का डॉक्टर बन जाता है या गुरु बन जाता है। तो थोड़ा रुकना पड़ा। मैंने बोला ठहर, 2 कदम सांस ले। शिव योग कृषि के लिए मैंने सांस नहीं ली, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप ही सब कुछ सही कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो गलती कर ही सकते हो। मैंने कहा वेयर आई वेंट रॉन्ग, तो मैंने कहा आई वेंट रॉन्ग क्योंकि जो हेल्थ है, हेल्थ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स। सो हाउ कैन आई पास ऑन द मेडिकल डॉक्टर्स? और अगर मैं किसी और को सिखा देता हूँ ये ट्रीटमेंट मेथड्स, तो आई एम नॉट डूइंग एथिकल प्रैक्टिसेस। तो उसके बाद मैंने जो भी 60 साल की साधना के बाद मैंने प्राप्त किया, वो शिव योग मैंने मेडिकल डॉक्टर्स को सिखाना शुरू किया। और वहां एक मेडिकल प्रोफेशन में एक नई साइंस डेवलप करी गई, जिसको बोलते हैं कॉस्मिक मेडिसिन। शिव योग इंटीग्रेटेड कॉस्मिक medicine. It is not alternative medicine. It's an integrative cosmic medicine. और जब डॉक्टर्स को मैंने, बिकॉज हेल्थ इज अ बिग इशू, इसलिए इट इज अ बिग इशू क्योंकि डायबिटीज नाउ इज स्प्रेडिंग लाइक ए एपिडेमिक, कैंसर इज स्प्रेडिंग लाइक एन एपिडेमिक, आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, there is no cure. There has to be a cure. वो जो साइंस थी, मैंने कहा कहीं हम भूल रहे हैं। तो जो हमने प्रैक्टिस किया था कि every individual is not a physical body, but is a sum total of energy bodies, and it comes from the supercausal body to causal to astral to etheric body and the physical body. It is. और जो मॉडर्न साइंस है, इट्स वर्किंग ओनली ऑन द फिजिकल बॉडी। और फिर मैंने सिखाया कि उनको साइमल्टेनियसली यू वर्क ऑन द एथरिक बॉडी एज वेल एज द फिजिकल, एंड रेज द पावर ऑफ एथरिक बॉडी। और उसको नाम दिया डॉक्टर्स ने, to make a doctor as a living medicine. If a Shiv Yoga doctor of cosmic medicine, if he practices the modalities of Shiv Yoga cosmic medicine, then he himself becomes a living medicine. So a living medicine and the pharmaceutical medicine with the modalities of modern medicine, when they work on the patient, तो सभी डॉक्टर्स ने एक चीज बोली, और वो था क्योर इज पॉसिबल। और वो रिजल्ट आने शुरू हुए। और जब ये देखा गया तो फिर मुझे मेडिकल कॉलेजेस से इनविटेशन आए। यूएसए का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और पुराना मेडिकल कॉलेज है, द रटकर यूनिवर्सिटी,
तो वहाँ डॉक्टर्स को लेक्चर देने के लिए उसको ग्रैंड राउंड बोलते हैं, ग्रैंड राउंड। सो आई कंडक्टेड देयर। उसके बाद बोस्टन मेडिकल कॉलेज में बुलाया गया। Then I conducted a grand round in the Cincinnati Medical College. Then उसके बाद इंडिया में D.Y. पाटिल मेडिकल कॉलेज पूना, वहाँ, और उसके बाद उनके सारे डॉक्टर्स ने, जो डॉक्टर्स को मैं ग्लोबल डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा था कॉस्मिक मेडिसिन की, उनको बुलाया गया। And they liked and they studied my contribution in the field of agriculture and contribution in the field of health. तो वहाँ पे डॉक्टरेट ऑफ कोसा, तो वो डिग्री है जिसमें आप एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करते हो किसी भी फील्ड में। तो they were the first one to recognize. तो वहाँ से नाम पड़ा। सिंपल योगी का नाम जो है डॉक्टर अद्भुत शिवान। नितिन गडकरी जी आए थे वहाँ और उन्होंने कहा इंजीनियर्स को डॉक्टरेट, पीएचडी को डॉक्टरेट, ऐसे बहुत सारे डॉक्टरों को डॉक्टरेट डिग्री तो मैंने दी है, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ एक योगी को डॉक्टरेट डिग्री। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष, उनके प्रोग्राम्स में मैंने मेडिकल डॉक्टर्स को बताया। और व्हाट इज दैट प्रिंसिपल, व्हाट इज दैट मैजिक, व्हाट इज दैट मैजिक? लंबा, तो बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन इसको शिवियो कॉस्मिक मेडिसिन को सीखने के लिए देयर इज ए chapter of cellular biology. Cellular biology, how the cells of the body they behave. And the cellular microbiology. What is microbiology? क्योंकि जो सेल्स हैं उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, न्यूक्लियस है, डीएनए है, क्रोमोसोम्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, माइटोकॉन्ड्रियास हैं। तो उसको कैसे एक्टिवेट करना, एंड द सेलुलर डिसइंटीग्रेशन एंड सेलुलर रीजनरेशन, तो वो सीखना होगा। उसके बाद जो शिवियो कॉस्मिक मेडिसिन है उसमें एटॉमिक साइंस को सीखना होगा, हाउ द एटम्स से बिहेव। और जो नाम है ना शिवा, ये भगवान की भक्ति है, भगवान भी कहो, लेकिन वास्तव में जो है एटम्स जो है, एटम्स, हर एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंड दे आर द गाइडिंग फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ एटम। और जो मैंने कहा था ना कि शिव योग मीन्स इमर्जिंग, अवेकनिंग, एंड शिवा मीन्स E is equal to mc square, क्वांटम फिजिक्स। क्योंकि शिव योग कॉस्मिक मेडिसिन अगर सीखना होगा तो क्वांटम फिजिक्स भी सीखना होगा। ये मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ बिकॉज द ह्यूमन बॉडी एंड द एग्रीकल्चर इज द सेम, क्योंकि हमारे ही भारत के प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने ये साइंस बताई थी कि द प्लांट्स हैज द लाइफ। सो इफ प्लांट्स हैज द लाइफ, और आजकल जो हाइब्रिड सीड्स बन रहे हैं, द साइंटिस्ट दे आर वर्किंग इनसाइड द लेबोरेटरी ऑन द जीन्स ऑफ द seeds. तो genetic modification, I will say it's a genetic temporary, वो मैं बाद में आऊंगा उसमें। तो
क्वांटम फिजिक्स का जो प्रिंसिपल है कि वाइब्रेशन से एनर्जी उत्पन्न होती है, एनर्जी से मैटर उत्पन्न होता है। शिव योगियों ने इसको सीखा। तो कैसे सीखा? जो वाइब्रेशन है, इट इज यूनिवर्स, और हर चीज का साउंड है। अगर आप ताओ फिलॉसफी को देखोगे तो वो बोलते हैं कि एवरीथिंग हैज ए साउंड। और अगर शिव योग सनातन को कहोगे तो वो भी बोलेंगे कि एवरीथिंग रन्स बाय द साउंड, स्पेसिफिक साउंड। तो उसी तरीके से द साउंड ऑफ द यूनिवर्स इज शी 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 शी। I'm influencing the atoms, the atomic behavior. And when I say va 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 va, तो मैं एक वेव, जैसे वाईफाई होता है ना, आई एम सेंडिंग इट इनटू द यूनिवर्स। तो योगीज ने इसको समझा, तो उन्होंने बोला शिवा शिवा शिवा। तो वो कॉस्मिक एनर्जी को जो है, एटॉमिक एनर्जी को इन्फ्लुएंस कराने के लिए। एंड योग मीन्स अवेकनिंग। तो वो जो एनर्जी को अगर हम अवेकन करेंगे तो कैसे करेंगे? द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स सेज कि एटम्स जो है, हर मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो गोल्ड का हो या आयरन का हो, who decide? एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन बदल दो तो वो कॉपर हो जाएगा, एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन बदल दो गोल्ड हो जाएगा। तो शिव योगियों ने हमारा जो ब्रेन है ना, ये हमारा जो हार्ट है, हार्ट हैज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और हमारा जो माइंड है, इंडिविजुअल माइंड को हम साधना के द्वारा हम कॉस्मिक माइंड में रेज करते हैं। और जब उसको हम उठा के लाते हैं तो वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, इट वर्क्स ऑन द एनर्जी, ऑन द एटम्स। और एटम्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर हम काम करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगी। और कॉन्फ़िगरेशन बदलते ही जो है, पहले योगी सोते थे ना, मिरेकल्स करते थे कि खाना चाहिए तो खाना ले लो, कुछ भी चाहिए ले लो। लेकिन अब मैजिशियंस भी करते हैं, लोग बड़े खुश हो जाएंगे ऐसा अगर एक जादू दिखा दोगे। मेरे से भी किसी ने पूछा कि कैन यू शो द मिरेकल्स? मैंने कहा आई एम नॉट ए जगलर, मैं जगलर मदारी थोड़ी हूं जो मैं तुमको जादू दिखाऊंगा। नहीं, लेकिन यू कम फ्रॉम द शिव योग लिनेज, कुछ तो दिखाओ। मैंने कहा मैं कुछ भी दिखा दूंगा तो आप बोलोगे हाँ ही कैन डू इट। मजा तो उसमें है भाई कि मैं वो जादू तुमसे करवाऊं, मैं खुद नहीं करूंगा। क्योंकि शिव योग में कहा है कि तुम्हारी एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, जो भी हो यूजफुल काम के लिए होनी चाहिए। मैं घड़ी निकाल दूं, लड्डू निकाल दूं, इसको इधर खसका दूं, इसको इधर खसका दूं, हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? इसको फायदा थोड़ी है। 2 रुपए का एक लेबरर ले आओ, उसको 10, 20, 50, 100 रुपया दे दो, वो इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख देगा। तो तुम्हारी तपस्या क्या इसी चीज के लिए रह गई, दिखाने के लिए? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? सर्विस टू द यूनिवर्स, टू द गॉड। वो वाह, शी वाह। सर्विस टू द नेचर, she. So I am serving nature, she. I am serving the universe, wow, she. Wow. And product of Shiva, vibration, say energy, and product of the energy is the matter, is the humanity. So if I am a true Shiv yogi, my every moment will be busy in service and service to the humanity.
I'm not saying blessing to the humanity, I'm saying service to the humanity. I'm always serving. मैं अभी किसानों के गांव-गांव जो जा रहा हूं, तो क्या है? इट्स ए सर्विस। अब उसके बाद जो है, जब मैंने साधना करी, तो वो जो शक्ति है, उस शक्ति को जब हम एटम्स के अंदर लेके आते हैं और उसके जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, दैट इज शक्ति, दैट इज शिवा। वो वाह, ये शी, जब इनकी मर्जिंग होती है तो इतनी स्ट्रॉन्ग पावर उठती है, इसे रीजनरेटिंग पावर्स वो बोलते हैं ना कि एटॉमिक पावर डिस्ट्रक्शन के काम भी आती है, एटम बम बनता है। और हम शिव योगियों ने सीखा कि उसी एटॉमिक पावर को हम जीवन देने वाली शक्ति को बनाएंगे। तो पूरी दुनिया में इस समय हेल्थ एंड वेल बीइंग इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इंडिया में तो काफी गवर्नमेंट कर भी रही है, इंश्योरेंस देती, बट द बिगेस्ट थिंग इज यूरोप एंड यूएसए। यूरोप एंड यूएसए, वहां इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ता है अगर कोई बीमार हो जाता है, और गवर्नमेंट को बहुत बड़ा बजट मेडिकल साइड में देना पड़ता है। तो मैंने कहा कि ये दो चीजें मुझे मिली हैं, एक तो फार्मिंग सेक्टर में और एक ये। तो फार्मिंग जैसे होता है ना, एक चीज अपने घर के लिए कोई छुपा के रखता है कि ये तो घर ही खाऊंगा जाके, अपने घर ही अपने लिए रखूंगा। तो शिव योग फार्मिंग मैंने इंडिया के लिए छुपा के रखा। मैंने कहा ये मेरे किसानों के लिए है। ऑल्दो इन यूरोपियन कंट्रीज इन द वेस्ट, मुझे आज भी अप्रैल के महीने में I was scheduled to spend a day with the agriculture minister. I will not name the country because I did not go there, so it's not correct. तो उन agriculture minister के साथ I had to chalk out the modalities so that he wanted to introduce Shiv Yoga farming in their country. एक बारी तो हाँ हो भी गई थी, हमारे डॉक्टर साथ हैं, दिल है कि मांगता नहीं, मैं मचल गया। नहीं, 10 साल मैं घिसा हूं, 10 साल और घिसूंगा। यहाँ तो मेरे देश का किसान शिव योग फार्मिंग सीखे नहीं तो कोई बात ही नहीं, बाकी तो बहुत अमीर हैं, चला लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट फर्स्ट इंडिया, मुझे हर फार्मर के पास नहीं सीखते, लेकिन धीरे धीरे जो मैं एक कछुए की चाल से चला हूं ना, इट्स पेइंग अ लॉट ऑफ डिविडेंड्स। और धीरे धीरे जो किसान हैं उसको सीख रहे हैं। तो ये जो कॉस्मिक मेडिसिन है, ये मैंने सिखाया डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेजेस में, डॉक्टर्स के 6-6 दिन के कॉन्फ्रेंसेस ली मैंने। और मजे की बात है, जो अलग अलग डॉक्टर्स एसोसिएशंस हैं, तो पहले बोलते थे सैटरडे संडे वी कैन कम, आप आके बोलो शिव योग। आई सेड आई कैन नॉट कम फॉर सैटरडे संडे। इफ यू आर विलिंग टू कम फॉर 7 days आई विल कम, अदरवाइज आई डोंट। एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि अल्ट्रासाउंड मशीन में अपने आप जब शी और वाह, शी वाह, जब उसको कॉस्मिक एनर्जी को एटम्स कॉन्फ़िगरेशन में जब किया, तो उन्होंने देखा कि बॉडी के अंदर जो सिस्ट है वो डिसॉल्व हो रहा है। आधे घंटे में दे सॉ इट ऑन द अल्ट्रासाउंड मशीन, और सिस्ट गायब हो रहा है, पत्थर स्टोन गायब हो रहा है, ट्यूमर इज श्रिंकिंग एंड लिक्विफाइंग इनटू दिस। दिस ऑल आर दिस आई डिड इन यूएस। डॉक्टर्स को बुलाया था मैंने कि अल्ट्रासाउंड आप लेके आ जाओ। हालांकि आप फिर कहोगे कि ये तुम दर्शन कर दिया तुमने,
मैंने माफ़ी मांगी थी कि पहली बार और आखिरी बार मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया से आया हूँ तो इंडियन मेडिकल साइंस क्या है, आई जस्ट वांट टू शो। पर एक बार ही नहीं, 2-3 बार किया था मैंने। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट ऑफ माय मिस्टेक्स, बट व्हाट हैपेंड कि उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि वी वांट टू लर्न। और फिर कैंसर हॉस्पिटल में हर जगह पे ग्रैंड राउंड्स हुए, देयर आर मेनी मेडिकल कॉलेजेस, और उन्होंने सीखा और देखा कि जो हार्ट इंस्टीट्यूट्स हैं तो वहाँ पे रिवर्स बैक पेशेंट्स का वो आना बंद हो गया। कैंसर पेशेंट्स जो हैं, डॉक्टर ने देखा कि व्हेन दे बिकम द लिविंग मेडिसिन, तो जो एनेस्थीसिया डोज थी वो 50% हो गई, सर्जरी सक्सेसफुल होनी शुरू हो गई, और इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनको बड़ा फायदा हुआ। तो उसके बाद आई एम थैंकफुल टू द कंट्री, वेरी हम्बल थैंक्स कि उन्होंने 2 बार अमेरिका में अलग अलग डेट्स में अमेरिकन फ्लैग पूरा सबने साइन किए कि वी शुड ऑनर डॉक्टर अवधूत शिवानंद, और वो they hosted the American flag, and I was later on presented that flag and with the memento जो भी है कि मैंने कहा लोग ठीक हो गए, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई। said you have contributed so much to the economy of the country, they calculate very fast, they are very intelligent, कि इतने $1 million जो हैं आपने सेव कर दिए। उसके बाद न्यूयॉर्क में twice in New York City, they declared Shivanand Day, particular day. That will be celebrated as Shivanand Day. In Los Angeles में they declared Shivanand Day. Then Dallas they declared Texas Shivanand Day. Then Cincinnati they declared Shivanand Day. So I'm grateful to them, and I'm grateful to the Puna's Medical College, DY Medical College, they acknowledged and they said, we announce you as a doctor of Bucho. क्योंकि जो health है, health is very very important. It's a birthright of every human being. अपने life को आधी जिंदगी नहीं जीना है, पूरी जिंदगी जीना है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि कैलिफोर्निया में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक मेडिसिन का स्थापना हो चुकी है। वहाँ पे मेडिकल डॉक्टर्स की एक फैकल्टी बन गई है। मैं नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैं डॉक्टर्स को सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत जगह पे प्रेस उसमें आया कि इंडियन योगी is shifting the modern medicine to the cosmic medicine. It's a new shift coming in the history of medical science. So I want कि qualified medical doctors जो हैं वो बाकी doctors को सिखाएं उसकी modalities, how to practice Shiva. Again, have you understood now? It's in terms of quantum physics, in terms of cosmic energy, or in terms of cellular biology, in terms of microcellular biology, in terms of atomic science, and in terms of subatomic science. तो वो जो है, और उसी के साथ साथ बोस्टन यूनिवर्सिटी या और जितने भी मेडिकल कॉलेज है, और उन्होंने भी they studied on the effect of sound vibrations on the body. Sound vibration on the body. मैंने बताया ना कि जो ताओ फिलॉसफी है उसमें भी वो बोलते हैं कि every organ has a sound. शिव योग भी बोलता है कि every organ has a sound. Even your spinal cord, the 32 vertebra and the tailbone has a sound. And when I teach you the science of merging
the cosmic energy with the earthly energy of the physical body, तो आप देखोगे कि अपने आप अलाइनमेंट होनी शुरू हो गई। These are Shiv Yoga craniosacral modalities of adjusting the brain, adjusting the vertebrae, क्योंकि ये organs की जो placement है, तो वो जो है इट्स ऑन ए फिजिकल। अब बताओ इसमें कोई रिलीजन है? बोलो, है? क्या इसका कहीं किसी हमारे पुराण में कोई उल्लेख है? वेदों में है, वेदों में है, आयुर्वेद में है, लेकिन ये खाली पढ़ के नहीं आता। जैसे MBBS 7 साल 10 साल के बाद आती है, उसी तरीके से जो प्रोफेसर ऑफ शिव योग कॉस्मिक मेडिसिन है उसकी 60 साल की पढ़ाई है, 60 years। शिव योग फार्मिंग, शिव योग एग्रीकल्चर, ये मेरी 60 साल की तपस्या है, 60 years। और डर जाएंगे लोग अगर इतना सब लंबा पढ़ाऊंगा। किसानों को, सीधा साधा किसान है, वो बूढ़ी अम्मा आई मेरे पास की, तो गोभी, बाबा जी गोभी उगाते हो, अब उसको थोड़ी मैं एटॉमिक साइंस सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा? लेकिन आपको मैं प्रिंसिपल बताता हूँ। हेल्थ के बारे में समझ आ गया कि नहीं आया? द फ्यूचर ऑफ हेल्थ इज वेरी ब्राइट and slowly the doctor community is joining, and I am going to, I will not say I am going to teach, but I will initiate the process. So medical doctors हैं, शिव योग कॉस्मिक मेडिसिन वो सिखाएं, जिससे आने वाले टाइम में मेडिकल कॉलेजेस में एक चैप्टर ये भी खुल जाए। अभी पब्लिकेशंस में तैयार कर रहा हूँ, जैसी भी आड़ी तिरछी हो रही मेरे से, क्योंकि योगी तपस्या कर सकता है, योगी काम कर सकता है, लेकिन किताब लिखे वो बड़ी मुश्किल है। उसके लिए तो आई नीड हेल्प, एंड द डॉक्टर्स आर हेल्पिंग मी, एंड वंस दोज पब्लिकेशंस आर रेडी, आई विल बी फर्स्ट बैच ऑफ द हेड फैकल्टी। मैं उनको सिखाने वाला हूँ, जो कि डाउन द लाइन सिखाएंगे। अब हम आते हैं एग्रीकल्चरल साइंस के ऊपर। सबसे पहले एक कन्वेंशनल खेती होती थी, बैल होता था, 2 बैलों की जोड़ी होती थी ना, हाट में भी जाओ बड़ा सुंदर सा एक बैल होता था। और मुझे याद है कि राजस्थान से वो गाय वाले निकलते थे, तो तब 100, 200, 400 गायों का पूरा रेवड़ होता था, बकरी वालों का होता था। तो हर खेत वाला उनको बुलाता था, अरे आओ इधर आओ, मेरे खेत में बैठक लगाओ, आपको हम चून देंगे, खाना देंगे। तो वो खाना पीना जो 4-6 लोग होते थे उनको मिलता था, वो गायें वहाँ बैठती थी, तो पेशाब गोबर, वो फसल उपजाऊ, जमीन धरती उपजाऊ हो जाती। दैट वाज अ नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग। उसके बाद कंपोस्ट खाद का बड़ा खादी ग्रामोद्योग ने बहुत सिखाया, वर्मी कल्चर, और फिर वो डालो। लेकिन एक मैसिव 50 एकड़ का 20 एकड़ का खेत है, तो उसमें आप ये कंपोस्ट खाद वगैरह कैसे फैलाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल। उपज कम होती थी, और पूरी दुनिया में द बिगेस्ट प्रॉब्लम, हेल्थ से पहले द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज फूड, खाना। सबको खाना मिलना चाहिए। तो इट वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली, मैं फिर बोल रहा हूँ, इट वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली कि अगर यूरिया डल जाए, यूरिया इज ए केमिकल, यूरिया अगर जमीन पे डल जाए तो फसल बढ़ जाती है। तो सब ने कहा बल्ले बल्ले, ये तो बड़ा अच्छा हो गया।
लेकिन जो थॉट था वो नैरो विजन था, मायोपिक विजन, क्योंकि वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ। और आप डालोगे यूरिया, तो द कंटेंट ऑफ द यूरिया विल इट रिमेन इन द फूड और नॉट? यस। तो एक तरफ हम हेल्थ बढ़ाने के लिए खाना दे रहे हैं, दूसरी तरफ खाने में जहर डाल रहे हैं। लेकिन अब मजा आ गया, यूरिया जब बिकता है तो इंडस्ट्री लगती है, तो एवरीबडी इज ए फायर, वेरी फायरी फेलो, प्रमोशन होती है, अलग अलग वैरायटी यूरिया की आती है। फिर उन्होंने कहा कि मॉइस्चर कम हो रहा है, तो डीएपी डालो, डीएपी। तो डीएपी का काम है कि मॉइस्चर पकड़ के रखता है। तो डीएपी एंड यूरिया खाना और पॉइजनस हो गया। और वो जो नोबेल प्राइज जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट को मिला था, प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस थे कि बसु थे, कि प्लांट्स हैव द लाइफ। तो अगर लाइफ है तो उसमें केमिकल्स डालोगे तो लाइफ आधी रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? बोलो। क्योंकि मैं अब इसी लाइफ को मैं शिव योग की साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं। जब आधी हो गई तो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द प्लांट्स हैज इट रिड्यूस्ड और नॉट? बोलो यस और नो? यस। और उसी के साथ साथ शिव योगी बताना चाहेगा कि जो सॉइल होती है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, इट्स अ रीजनरेशन एंड डिकेइंग, डिस्ट्रक्शन, पैदा और डिस्ट्रॉय। अगर रीजनरेशन नहीं होगा तो सड़ेगा नहीं, तो फिर वो नेचर बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं ना, वो होगा नहीं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइफ गिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उसी तरीके से लाइफ टेकिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिव नहीं होते। 3% is life giving. Please make a note of it, all the scientists. क्योंकि मेरे से पूछा था एग्रीकल्चरल साइंस साइंटिस्ट ने कि आपने किस यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चरल साइंस पढ़ी? मैंने कहा द यूनिवर्सिटी इज इनसाइड मी, क्योंकि मुझे, और वो आपके अंदर भी वो यूनिवर्सिटी है। जब कोई भी ज्ञान की आवश्यकता होती है तो शिव योगी समाधिष्ट हो जाता है, और जब बाहर निकलता है तो उस साइंस को वो अंदर से बाहर लेके आता है। तो इस समय मेरे भारत को जरूरत थी, किसानों को जरूरत थी ये एग्रीकल्चरल साइंस की, जिसमें कि बहुत ज्यादा उत्पाद हो और धरती जो बैरन हो रही है वो रुक जाए। तो वहां से मैं सीख के आया। क्या बता रहा था मैं? लाइफ 3% लाइफ गिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और 3% डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। 97% they are in the dormant form. Same is the system in the human body. The DNA, 3% DNA is active, 97% is dormant, which medical science says is a junk DNA. There is nothing junk. It's in dormant form. There is a life-giving and there is a destructive DNA. इसलिए जो cells हैं, healthy cells होते हैं, then they say the cells have become cancerous cells, क्योंकि उसमें जो decaying system of DNA वो ज़्यादा एक्टिवेट हो गया। तो अब जो है, जब हमने यूरिया DAP डाला तो जो लाइफ गिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर गए। इवन केंचुए भी मर गए ना, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म। तो जैसे ही वो 3 से कम होगा ग्राफ, ये लाइफ टेकिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये उठ जाएंगे।
बड़े ध्यान से सुनिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल। कहते हैं ना आजकल पता नहीं बीमारी बहुत होती है, आई एम टीचिंग यू क्यों होती है। अब उसके बाद एक तो पौधे के अंदर लाइफ कम हो गई, आधी हो गई, ऊपर से डिकेइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ गए एनवायरनमेंट में और अर्थ में, तो बीमारियां लगी। अब बीमारियां लगी तो साइंटिस्ट ने कहा कि चलो पेस्टिसाइड बनाओ, जहर बनाओ। अब किसान को हेल्प करी गवर्नमेंट ने, उधारी दी, भाई तुम पेस्टिसाइड ले लो, बिकॉज द गवर्नमेंट मेंट गुड बट द पुअर फार्मर। तो ये थोड़ा सबने जो है ना ब्रॉडली नहीं देखा, एक एक सारे दौड़ते गए और फंस गया किसान। अब जैसे ही स्प्रे किया तो हमारे नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट, प्लांट्स हैव द लाइफ, फिजिकल पौधा खड़ा रह गया तो क्या हुआ, पत्तियां पीली पड़ गई, बोलते ना पत्ती पीली पड़ गई, खासकर तूर दाल होती है या होती है, और उसको इल्ली लग जाती है, इल्ली सुंडियां। जो इल्ली का मतलब है कि जब भी कोई जानवर मरता है तो मरे जानवर की बॉडी में इल्ली लग जाती है, जिसे सुन लिया, बिकॉज दे आर सो द डिस्ट्रॉइंग प्रोसेस हैज स्टार्टेड। चने की फसल हो, उसकी हो, छेक 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 हो जाते हैं। किसान ने पैसा खर्च किया, पहले तो हाइब्रिड सीड लेके आए, जेनेटिकली उसके जीन्स को मॉडिफाई कर दिया, टेम्पर कर दिया, महंगा दिया। उसके बाद लाइन में लग के महंगा यूरिया डाला, डीएपी डाला, तो वो फसल बिगड़ गई तो उस पर स्प्रे डाला। अब उतने पानी से काम नहीं चलेगा, पानी और चाहिए, पानी और चाहिए तो डीजल और चाहिए, और वो लाइफलेस हो गया। तो एक आदमी हेल्दी होता है तो उसको कुछ नहीं होता, और कमजोर होता है तो एक झटका लगे, गिरा तो गिरते ही उड़ जाता है। फसलें एक ही बारिश हुई, लेट गई, खत्म। That was our green revolution. Next time जब जितने भी किसान आए पूछ लेना कि जितना यूरिया और खाद डालते थे अब उससे ज्यादा डबल डालना पड़ता है, जितने पेस्टिसाइड डालते थे उससे ज्यादा डालते हैं। अब एक चीज और है, अगर एक आदमी ताकतवर होगा तो शरारती लोग और आएंगे ताकतवर आदमी के पास, बोलो यस नो, नहीं आएंगे। अगर सॉइल मजबूत होगी, सीड मजबूत होगा, प्लांट मजबूत होगा, तो क्या वीड्स आएंगे? वीड्स नहीं आएंगे। लेकिन जब ये पूरा सिस्टम और डिकेइंग प्रोसेस हमने बढ़ा दिया तो वीड्स ज्यादा आने शुरू हो। प्लीज सी फॉर योरसेल्फ, देखो खरपतवार ज्यादा होनी शुरू हो गई कि नहीं। तो अभी उन्होंने जो मार्केटिंग वाले हैं, दे आर वेरी एग्रेसिव मार्केटिंग, उन्होंने कहा एक और पेस्टिसाइड ले लो, वीडीसाइड पेस्टिसाइड। तो वीडीसाइड पेस्टिसाइड माइंडलेस बेचारे किसान को क्या पता, वो भी छिड़का। अब खेत के अंदर जो रेप्टाइल्स हैं, दे आर योर फ्रेंड्स, वो मर गए। अब उसके बाद आम का बगीचा लगाया, अभी एक अम्मा अनार लेके आई है, बोली कि पहले हमारे पेड़ थे अनार के, फूल आता था झड़ जाता था, फल आता ही नहीं था। यू नो व्हाई? क्योंकि तितलियां मर गई, भंवरे मर गए स्प्रे करने से, मधुमक्खियां मर गई। तो क्या हो रहा है? पॉलिनेशन चाहिए, पॉलिनेशन, इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिनेशन। हम भूल रहे हैं साइंटिस्ट को। देखो एक चीज मैं बताऊं, कोई भी काम करो तो शुद्ध भावना से करो। भावना कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। अगर एग्रीकल्चर में आ रहे हो तो व्हाई हैव यू कम टू एग्रीकल्चर? तुम्हारा प्राइम कर्तव्य क्या होना चाहिए एग्रीकल्चर में? किसान। क्या होना चाहिए? किसान को फायदा हो, किसान को बचत हो, किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे किसान से कोई फायदा नहीं लेना, मुझे तो सर्व करना है किसान को। क्योंकि एक जो
शिव योग में ऑब्जेक्टिव ऑफ हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? सर्विस, सर्विस टू द गॉड, सर्विस टू द नेचर एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। अब इस ह्यूमैनिटी में मेरा शिव योग कृषि में व्हाट इज माय ह्यूमैनिटी? किसान। तो इसीलिए शिव योग में कहा है कि होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। साइंटिफिक अप्रोच तो है, अगर होलिस्टिक नहीं है तो उड़ा डालोगे। ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, इट्स ए साइंटिफिक अप्रोच बट इट इज नॉट ए होलिस्टिक अप्रोच। खाना वो खाओ जो शरीर को लगे। The body cellular system is compatible to the natural crops. लेकिन अगर उसके जीन्स को हमने टेम्पर कर दिया तो वो जो खाना खाएंगे तो हमारे सेलुलर सिस्टम में जो जीन्स हैं वो उसको टेम्पर करेगा। इसलिए अभी नॉन जीएमओ, तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज से जो खाना उगाया गया है वो डबल ट्रिपल रेट में बिकता है। लिखा आता है कि नहीं नॉन जीएमओ। व्हाई? क्योंकि जो भोजन के अंदर डीएनए है, जो जीन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर भी, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने कहा कि दे हैव अ लाइफ, तो उसमें जेनेटिक जो जीन्स हैं इट शुड बी नेचुरल। और हमारे बॉडी के अंदर जो सेलुलर सिस्टम है उसमें भी जीन्स हैं। And if that is natural and this is natural, then they are compatible. अगर वो genetically modified है, तो it is going to temper the genes of the human beings. और आने वाले टाइम में जो human beings, जो बच्चे हैं, they are mutating. और वही हमारे शिव योग में कहा था कि कलयुग में मनुष्य अल्पायु होगा, रुग्ण होगा। तो ये प्रोसेस जो है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो मेथड्स हमने अडॉप्ट किए हैं, अगर ये खाना हम खाते रहे तो मनुष्य रुग्ण होगा। दे हैव स्टार्टेड म्यूटेटिंग, वो चेंज होने। आप देखो अभी पहले जो नौजवान होते थे एकदम पवित्र बुद्धि होती थी, पवित्र चेहरा होता था, पवित्र सोच होती थी, पवित्र एक्शन होते थे, अभी भी होंगे लेकिन शायद और अच्छे हो सकते हैं। तो अब उसके बाद विकल्प आया कि नहीं भाई, और एक उसके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है दैट इज पर्यावरण, इकोलॉजी। वो प्रॉब्लम ये है कि एक जगह बारिश हो रही आज सीजन में, जून के महीने में बारिश होनी, अब जुलाई में हो रही है। लातूर में आपको याद होगा, बहुत सारे आए हैं हमारे किसान लातूर में, उनको भी याद होगा कि गवर्नमेंट ने पीने के लिए पानी नहीं था तो ट्रेन में पानी भर के वहां भेजा था। तो वहां पे एक शायद किसान आया होगा जो शिव योग का पहले से था, आम की बगीचे थी, उसके बाद कहीं एक ड्रॉप पानी नहीं था और उसके कुएं में पानी लबालब भरा हुआ था। और एक भी तुनका कहीं उगा नहीं था, उसका पेड़ जो है फलों से लगा हुआ। और शायद इसी गोवा में कुछ साल पहले वो फल भी लाया था, उसको शिव योग मैंगो कर करके सब लोग कहते थे हमें खिलाओ, हमें खिलाओ। आज भी शायद यहाँ नरसिंहपुर से लाए हैं वो आम, वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। और हमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को हमने गोवा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को आप टेस्ट करो। He said, yes, it's very tasty. कितना जूसी था सर। तो सभी लोग, जब सब जगह सूखा था तो सब आए कि भाई तेरे खेत के अंदर ऐसा क्या जादू है? तो बोला ये शिव योग एग्रीकल्चर है, शिव योग कृषि। लातूर में इतने ज्यादा शिव योग फार्मर्स हो गए कि आज लातूर में पूछ लो, यहाँ अपना पर्यावरण देख लो, बड़ा टाइमली बारिश हो रही है, धनाधन बारिश हो रही है। सूखा क्या होता है, सूखे की बात करो लातूर वालों से तो भी देख क्या होता है, इकोलॉजी।
शिव योग कृषि से पहला सबसे बड़ा फायदा, किसान का जो खर्चा है वो 70% कम हो जाएगा। कितना 70%? तो खेती में आया तो पहले 70% मुनाफा हो गया। अब वो हाइब्रिड बीज नहीं खरीदेगा, अपना बीज बनाएगा, अपना बीज बनाएगा। और साइंटिस्ट ने कहा कि जब शिव योग की शक्ति डालते जाते हैं उस पे, तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रिवर्स होना शुरू हो जाता है। तो वो जो जेनेटिकली टेम्पर हुए सीड्स, दे स्टार्ट्स कमिंग टू नाउ। और एक किसी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था, जितने भी महंगे महंगे हाइब्रिड सीड थे और एक शिव योग बीज था, और उसने कहा कि हमने टेस्टिंग के बाद पाया कि शिव योग बीज की गुणवत्ता बाकी सभी बीजों से कई गुना अधिक थी। मुखत की टीचिंग, मुखत का काम, और आम के आम और गुठलियों के भी बहुत तगड़े तगड़े दाम। और आम भी ऐसा, किसान बोलते हैं हम तोड़ते जाते हैं वो आता जाता है, हम तोड़ते जाते हैं वो आता जाता है, हम तोड़ते जाते हैं आता जाता है। तो काजू हो चाहे नारियल हो चाहे क्या हो, इट्स रियली गुड। अभी तूर दाल लेके आए, 14 फुट का हुआ। मैं बोला अभी 1-2 फुट थोड़ा और नीचा है, 15-16 फुट का होता है। वैसे तूर दाल का पौधा 4 से 5 फुट का होता है, 14 फुट। 8 गुना फसल बढ़ गई, 8 गुना, 8 टाइम्स। तो इंडिया में जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने कहा ना कि हम कितना 2020 का कब का 2022 तक हम दुगनी कर देंगे। आप थोड़ा सा हमारी हेल्प कर दो, हम इसी साल 3 गुना फसल कर देंगे। तो एक ही रिक्वेस्ट है, सारे टीवी चैनलों से इन्वेस्टिगेशन कर लो और याद रखो यार, एक अकेला थक जाएगा, थोड़ा हाथ बटाना साथी, हाथ बटाना साथी। एंड आई अप्रिशिएट द इनिशिएटिव ऑफ गोवा एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड स्पेशली उनकी वाइफ जो शिव योगी है, शी टुक द इनिशिएटिव। मैं तो गोवा तो आई एम वेरी हैप्पी। और अभी इतना काम भी नहीं किया मैंने गोवा में। अब सतुआ पिसान बांध के आने वाला हूँ। हर खेत में गाने वाला हूँ, ले 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 ले। तो इतना 70% कॉस्ट कम हो गया, और 2 गुना 1.5 गुना ऐसा कोई किसान नहीं जिसने कहा हो अगर उसने शिव योग प्रॉपरली नहीं किया होगा भूमि में कहता दुगनी से 8 गुना फसल हो गई। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, आमदनी डबल। तो आप देखो कि जब वो अपनी फसल लेके जाता है तो मिनिमम टू मिनिमम 25% उसको एक्स्ट्रा मिलता है, 25% से 50%। और किसी ने बताया कि मेरे को दुगने दाम मिले चने और वो सब डबल दाम पे आड़तियों ने लिया। और जो ज़्यादा दाम ले रहे हैं उसकी फसल वहाँ पड़ी नहीं रह जाएगी, पहले लेगी, क्वालिटी चाहिए। तो पहला बेनिफिट 70% कॉस्ट, दूसरा बेनिफिट तो इनकम बढ़ रही है, तीसरा बेनिफिट जो है उसकी फसल उपजाऊ हो रही है रोज के रोज, चौथा बेनिफिट वाटर टेबल जो है वो उसका अब नीचे नहीं गिर रहा। और अगर वो जोर मारेगा तो वाटर टेबल, अब जो ट्यूबवेल जो सूख रहे थे और जो कुएं जो सूख रहे थे उसमें पानी आना शुरू। उसके बाद जो कलेक्टिव बेनिफिट है वो पर्यावरण है।
अब मैं बताता हूँ कि क्यों बारिश नहीं होती। क्योंकि जब धूप पड़ती है ना तो इवापोरेशन होती है। और सुना होगा पहले कहते थे आज कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, बरसात होगी। अब कड़ाके की गर्मी पड़ती रहती है, बरसात नहीं होती, इसलिए क्योंकि इवापोरेशन होती है। और ये इवापोरेशन क्या काम करती है? इट वर्क्स एज सीड इन द क्लाउड्स। क्लाउड्स में जैसे ही वो सीडिंग होगी पानी बरस पड़ता है। अब हमने इतना पेस्टिसाइड सरफेस एरिया में डाला हुआ है कि जब सूरज चमकता है तो इवेपोरेशन पानी के साथ साथ वो पॉइजन की होती है। एंड व्हेन द सीडिंग ऑफ पॉइजन इट गोज टू द क्लाउड्स, वो घबरा के आगे भाग जाते हैं। यहाँ बारिश हुई, जगह जगह वो रॉन्ग सीडिंग हुई तो एक जगह क्लाउड बस्ट हो गया, एक जगह तो बारिश नहीं हुई, एक जगह फ्लड हो गया। शिव योग करने से आप देख लो नाटूर में ऐसे बहुत से एरियाज आप देखोगे जहां रेगुलर बारिश हो, वो पर्यावरण, वो इकोलॉजी, यू कैन टेल द वर्ल्ड why you are worried about the warming effect। या वो हम इंडिया में अगर वो चाइना ताओ की बात कर सकता है, जापान ज़ेन की बात कर सकता है, इजराइलीज they take a lot of pride and they are pioneer in developing new technology। वो सारे जूइस हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि ये जूइश टेक्नोलॉजी है? तो अगर मैं आपको सिखा रहा हूं तो आप क्यों कहते हो ये हिंदू टेक्नोलॉजी है? नहीं है। शिव योग इज नॉट ए रिलीजियस फिनोमेना। शिव योग इज ए एंशिएंट साइंटिफिक फिनोमेना व्हिच इज मेंट फॉर एवरी पर्सन। उसमें मैं कोई कह नहीं रहा कि गणेश जी की मूर्ति रखो, अगरबत्ती दिखाओ, फिर राम जी का नाम बोलो, कृष्ण जी का बोलो। इसे साइंस, मैंने साइंटिफिक बताया तो ये बेनिफिट हो रहा है। अब उसके साथ साथ जो शिव योग फार्मिंग करता है उसको आधा घंटा बैठ के जो फिनोमेना मैंने बताया ना कि कॉस्मिक एनर्जी एंड द अर्थ एनर्जी। अब हमने जो एक सभी लोग जो है सोचते हैं कि प्रॉब्लम आती है, एवरीबडी वर्क्स, तो बहुत से लोगों ने कहा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड दैट्स राइट, इट्स अ नीड, इट्स द ऑर्गेनिक फार्मिंग। होल फूड खुल गया यूएसए के, यूके में भी खुल गया, और अभी जिसकी हिस्से में ज्यादा पैसा होता है वो होल फूड जाता है, और $10 की चीज है तो वहाँ $50 की लेके ही इज वेरी हैप्पी क्योंकि ही श्योर ऑफ हिज हेल्थ। होल फूड में मिलता क्या? ऑर्गेनिक। तो हमारे किसान को हम उगाने के लिए कहते हैं, मैं बताता हूँ क्या होता है। जमीन पे इतना जहर खिला दिया हमने, इतना सल्फर कंटेंट हो गया, इतना एल्कलाइन इफेक्ट हो गया, इतना आर्सेनिक इफेक्ट हो गया, 3 साल तक खेत बोना नहीं है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इस पे यूरिया डाला, बीज डाल के देखो बीज जल जाएगा। 100 बीज डालोगे तो 4 या 5 पौधे निकलेंगे, बाकी खत्म। किसान को तो बेचारे को हर 3 या 6 महीने में पैसा चाहिए, घर का खर्चा चलना है, बच्चों की फीस चाहिए, गैया के लिए चारा चाहिए, आरटीए को पैसा देना है, कहीं और कुछ देना है। तो 3 साल तक सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट रुक सकता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अगर रुक भी जावे तो जो क्रॉप होगी, जो पहले नॉर्मल क्रॉप होती थी बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन, उससे कम पैदावार, कम पैदावार। Shelf life of the organic produce is very less and very short, and they look ugly, अच्छे नहीं लगते, सुंदर नहीं लगते, मुरझाए मुरझाए।
शेल्फ लाइफ, निकलते निकलते मुरझा जाएगा। 3 साल, 4 साल में थोड़ी होश आती है। तो मैंने शिव योग का कहा कि भाई आप डे 1 से शुरू करो। मैंने कहा ऐसे नहीं मानेंगे। मैंने आसाम यूनिवर्सिटी को बोला आप टेस्ट करो, और मेडिकल ये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज को बोला, मैंने यूरोप के साइंटिस्ट को बोला, प्लीज डू द सॉइल टेस्टिंग एंड देन वी विल सी। 21 दिन में ये जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस थे ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो गए। अगर 100 एकड़ में करोगे तो 100 एकड़ में गायब हो गए। तो कितने टन्स ऑफ पॉइजन गॉन somebody has taken। उसके बाद जो नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कार्बन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स 21 दिन में प्रचुर मात्रा में धरती में बढ़ गए। जो 3 साल में 4 साल में रिजल्ट पूरा ना आता, वो शिव योग कृषि से 21 दिन में आया। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं। और जमीन में एक भी केंचुआ नहीं था, अर्थवर्म नहीं था। वर्मी कल्चर पहले करोगे तो केंचुआ डालोगे, केंचुए मर जाएंगे, डाल दिया, तड़प जाएंगे। 21 दिन में पूरी जमीन भरी हुई थी अर्थवर्म से, फुल ऑफ अर्थवर्म। वर्मी कल्चर नेचुरल हो गया। ऑस्ट्रिया में फ्लोरिकल्चर करते हैं, क्रिसेंथेमम। एक अम्मा ने 96 प्लांट्स लगाए थे, वो पौधे खुले ही नहीं, रोरी थी। तो सारा पूंजी लगा दी, मैं क्या करूं? तो वहां ऑस्ट्रिया में शिव योगी बोले डोंट वरी, शिव योगी इज ऑलवेज हेल्प। उनको दीक्षा दे रखी थी मैंने शिव योग की। वो लोग बैठ गए वहां। वो जो सेलेस्टियल साउंड है, वो साउंड थेरेपी का वो चलाया उन्होंने। विद इन 7-8 डे वो क्रिसेंथेमम एकदम खिल गया। एंड विद इन फ्यू डेज वो 96, क्योंकि पूरे इलाके में और कहीं खिला ही नहीं था, उसके सारे गिर गए। बाकी लोग और आ रहे थे, और है उसके अंदर, नो आई हैव सोल्ड एवरीथिंग। तो हमारे लोगों को मैंने कहा 21 दिन का करना, फिर सॉइल टेस्टिंग करना। और एक सेलेस्टियल साउंड, मैंने बोला ना साउंड, द पावर ऑफ साउंड। ये कोई भजन वो सब नहीं है, सेलेस्टियल साउंड। ओम रोम जुम सा, शिव योगियों ने उसको द लाइफ गिविंग साउंड। तो वो स्पीकर्स में चल रहे थे। अभी बहुत से इन्वेंशन हो रहे हैं। मैंने कहा करो, खुद अपने आप ही मंत्रा बॉक्स बना लिए लोगों ने। बोले बाबा जी कैन वी मेक? बोला यस यू कैन मेक, बट लेकिन प्राइस थोड़ा कम। एनी रॉयल्टी? मैंने कहा यार सेलेस्टियल साउंड में वहां से लेके आया, मैंने तो नहीं रॉयल्टी ली, तो तुमसे क्या लूंगा? जब कुछ चाहिए होगा आई विल टैप द यूनिवर्स व्हाटएवर आई वांट। करो। तो किसी ने अभी खड़ा हुआ था, उसने वो सोलर पैनल बना दिया, उसके साथ सोलर इलेक्ट्रिसिटी लेता है। थोड़ी आवाज फटी हुई है, मजेदार नहीं है, लेकिन ये शोर है कि देखो बाबा जी मैंने ये ओम रोम जुम सा। तो खेतों में अलग अलग जगह पे उन्होंने लगा दिया। एंड ट्रस्ट मी, उन्होंने कहा फोटो दिखाई कि जहां जहां वो स्पीकर लगे थे, जब उसको उठाया तो गुच्छे के गुच्छे अर्थवर्म उसके नीचे थे। इतनी ज्यादा लाइफ थी कि वो देवत्या। उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर, जो भी फसल नहीं हो रही थी, फल नहीं आ रहे थे, और जैसे ही शिव योग कृषि शुरू करी तो इतना फल आया, इतना फल आया कि वो बोलते हैं हम शक्ति डालते जाते हैं, फल आता जाता है। शिव योग शक्ति डालते जाते हैं, फल आते जाते हैं। और अब हजारों की बात नहीं है शिव योग में, इस माइंड बॉगलिंग, लाखों की बात, लाखों की बात। और यहां भी आए हुए कुछ, मैंने कहा था कि बंजर जमीन सस्ती मिलती है,
बंजर जमीन जिसमें पानी नहीं होता सस्ती मिलती, खरीद लेना यार। और शिव योग की शक्ति डालना, वही बंजर जमीन फर्टाइल हो जाएगी और वो लोअर वाटर टेबल जो है ऊपर आ जाएगा चुपचाप हो। और इतनी बढ़िया फसल, इतनी बढ़िया सब्जी, उन्होंने बड़े हंस के कहा कि बाबा जी हमने बंजर जमीन ली थी, देखो कितनी पैदाश हुई। तो किसानों ने कहा कि जो हार्ड सॉइल थी, जब शिव योग की शक्ति डाली तो वो सॉइल सॉफ्ट हो गई। वो खाली सॉफ्ट ही नहीं हुई, उसमें नमी आ गई, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया। तो डीएपी डालने की जरूरत नहीं, फ्री का डीएपी जो है। और अब वो जब उन्होंने ट्रैक्टर चलाया, इट वॉज ईजी फॉर देम टू टिल देयर ट्रीज। और हॉर्टिकल्चर जब पेड़ लगाए तो कईयों ने बताया कि 10-10 साल से इस पेड़ में एक भी फल नहीं आया और अब ये पेड़ फलों से लगा हुआ, उनके बगीचे भर गए। मैं तो शिव योगियों से कहूंगा कि भाई, और अनार के एक कोई आया था गुजरात में, मैं तो हिल गया, पता नहीं 50-60 लाख 70 लाख कहता है मेरी जो है 1 साल की इनकम हुई है और सिर्फ 7 लाख रुपए का खर्चा हुआ। पहले 12-15 लाख का खर्चा करता था और 20-25 लाख की फसल होती थी। अब 2-4 में ही जो है फसल कॉस्ट कम हो गई। ही इज वेरी रिच। और फिर मेरे से उसने कहा कि आपने कहा था कि इनाम दोगे जो सबसे बढ़िया होगा, मेरे को इनाम दो। मैंने बोला यार पहले बता देता तो मैं रिवार्ड लेके आता तेरे लिए। आई एम सॉरी, आई डोंट हैव एनीथिंग, बट आई ब्लेस यू, आई अप्रिशिएट। वो गिर की गाय लेके आए, पहले 5 लीटर दूध देती थी, अब 10 लीटर, डबल हो गया। और आप इसको स्टडी करना कि न्यूट्रिटिव वैल्यू उस दूध में ज्यादा होगी, टेस्ट ज्यादा होगा, और फैट कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ 35-37 रुपए लीटर दूध बिकता है, उसका 120 रुपए लीटर लोग खड़े हैं उसकी गाय का दूध लेने। अब बताओ कितना फायदा हो गया उसको। डबल तो क्वांटिटी हो गई और वो हो गया, और उसके आजू बाजू के लोग भी ले जाएंगे, उसको ज्यादा भागने की जरूरत नहीं। 3000 रुपए किलो देसी घी उसका खरीदते हैं। और उसके साथ साथ जो डेयरी है, गाय बीमार नहीं होती, उसका लैक्टेशन पीरियड बढ़ जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इसकी जो हीफर्स, नेक्स्ट जनरेशन हीफर पैदा होगा, उसकी कैपेसिटी टू गिव मिल्क विल बी मच मोर देन द मदर। और हर बारी जो बच्चे पैदा होंगे उसकी नस्ल बढ़ती जाएगी। और आप देख लेना जो जर्सी गाय या ह्यूस्टन फ्रीजियन है, उसके बदले हमारे शिव योग देसी गाय जो है बराबर की, उससे ज़्यादा अच्छी टक्कर में। उसके बाद कुछ लोगों ने हनी भी करा तो शहद की क्वांटिटी बढ़ गई, कुछ लोगों ने मछली करी तो मछलियां बहुत सारी बढ़ गई। तो इस तरीके से जो प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, इसीलिए मैंने कहा कि गोवा में अब हम आयरन ओर नहीं, हम तो गोल्ड माइनिंग शुरू करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए साथी हाथ बढ़ाना, क्योंकि, और मैं ये मैसेज इसलिए दे रहा हूं कि जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं, प्लीज लर्न दैट। नहीं तो कॉन्फ्रेंस में जरूर वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको कंट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन याद रखो जो थाली में खाना परोसा जाएगा आपकी फैमिली के आगे, उसमें फिर भी जहर होगा। और वो जहर और वो जेनेटिकली टेम्पर्ड सीड्स जो हैं, दे विल नॉट बी कंपैटिबल टू द बॉडी। और वो जो कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और जो बीमारियां एपिडेमिक हो रही हैं, हमें उससे तो बचना होगा ना। तो कुछ तो दाम देना पड़ेगा ना। यू हैव टू पे द प्राइस, नथिंग कैन कम फ्री। सो प्लीज हेल्प मी। इफ आई एम जेन्युइन, टेस्ट एंड सी, देन प्लीज हेल्प। और उसी के साथ साथ जो है हम पूरे इंडिया में मेहनत कर रहा हूँ, और कुछ सेलेक्टिव जो मैंने अपॉइंट कर रखे हैं,
सेलेक्टिव, उनकी आइडेंटिटी जरूर देखना। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग ओवर इंथ्यूजियाज्म में ना तो उनको दीक्षा मिली है ना गाइडेंस मिली है, वो सीधा ही बोलते हैं चलो बैठ जाओ सीवीओ कराने हैं, तो बेचारा किसान हताश हो जाएगा अगर उसको कुछ मिला नहीं। दे शुड बी क्वालिफाइड टू डू इट। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? ये कोई जादू नहीं। जब हमने अर्थ एनर्जी, जैसे मैंने बताया था ना, शिवलिंग की ज्वेलरी, वो शिवलिंग, खैर मैं रिलीजन की बात नहीं, जो अर्थ एनर्जी है, दिस इज द एटम्स, और ये हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब शिव योग में हम क्या करते हैं कि जो कॉस्मिक एनर्जी है, दिस इज यिन एंड इट इज ए डिस्टर्ब यिन, इज ए डिस्ट्रॉयड यिन। जो शक्ति है उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसको अलाइव करने के लिए कॉस्मिक एनर्जी है, आई एम गोइंग टू एम्पावर यू। अभी ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ बोल लेने दो, मेरे को मैसेज देना जरूरी है, आप कन्विंस हो जाओ, उसके बाद में आप लोगों को शक्ति प्राप्त होगा। और जो मैंने 60 साल में प्राप्त किया, मैं आपको फटाफट उसका एक अंश तो आपको दे दूंगा। I'm going to share it with everyone, and for every human being, for every human being. तो वो उसको जब शक्ति को हम कॉस्मिक एनर्जी को उसके साथ मर्ज करते हैं, तो वो जो डिस्ट्रक्टिव लाइफ है वो ट्रांसम्यूट होके लाइफ गिविंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो सॉइल जो बंजर है उससे वो फर्टाइल होने शुरू हो जाता है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जमीन में भी लाइफ होती है, वाटर में भी लाइफ होती है, और जब वाटर की लाइफ खत्म हो जाएगी तो वाटर टेबल नीचे जाएगा। जब जमीन में लाइफ कम हो जाएगी तो उसमें क्रैक्स, और जब हम उसके अंदर उसको पुनः जीवित करते हैं तो वो सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाएगी। और अगर पानी को जो अंडर टेबल वाटर है उसको हम अलाइव करते हैं तो वाटर टेबल ऊपर आ जाता है। इट इज वेरी बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल। वी वर्क एट द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द सॉइल, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल से जो शक्ति निकलती है उससे जो लाइफ गिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बढ़ते हैं, वो कॉस्मिक एनर्जी, और उसको हम जोड़ देते हैं। आधा घंटा मैं आपको बोलता हूँ कि आपने शिवयोग कृषि करनी है बैठ कर हर फार्म में। तो वो जो मैंने आपको एम्पावरमेंट और जो बताया है, और उस समय जो सेलेस्टियल साउंड है वो है ओम रोम जुम साउंड। इट एमिट्स द वाइब्रेशन एंड इट इज ए वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन, इट्स ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वो उसको जीवित करता है। तो पहले मैं बोलता हूँ खेती बीज डालने से पहले धरती पे शक्ति डालो, और साइमल्टेनियसली जो सीड्स हैं जो जेनेटिकली टेम्पर्ड कर दिए हैं या कमजोर बीज हैं उसमें शक्ति डालो, तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगा, वो कन्वर्ट होना शुरू। और 15-20 दिन, 1 महीने के बाद जब बीज बोगे, असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने रिसर्च भेजी थी, शायद यहाँ होंगी वो, कि एक बारी तो ऑर्डिनरी जो महंगा वाला बीज है, एक तरफ शिव योग बीज जब डाला शिव योग सॉइल में तो 100% जर्मिनेशन हुई, वहाँ 70 to 80% भी नहीं कर पाए। दूसरा, जो 1 हफ्ते में जो प्लांट की लेंथ थी ऑफ शिव योग वाज मच बिगर देन द ऑर्डिनरी प्लांट जिसमें डीएपी, यूरिया, महंगा हाइब्रिड सीड डाला। These all are the टेस्ट, और ये पेपर पब्लिश हो चुके हैं भारतवर्ष की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के। बाकी लोग डरते थे, मैं और वाइस चांसलर से मिला, उन्होंने कहा वी आर स्केयर्ड एक्चुअली, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड है, थोड़ा इंडियन ट्रेडिशन ऐसा है कि भारतीय पद्धति।
मैंने कहा मुझे बहुत सा कहा कि आप एक बारी एक यूरोपियन कंट्री दे आर विलिंग टू कॉल यू, एक बारी वहाँ शुरू कर दो। मैंने कहा मैं शिवयोग कृषि होए या ना होए या मेरे अंदर ही रह जाए, करूँगा तो इंडिया में करूँगा, क्योंकि भारत की पद्धति है, नहीं तो मैं को ना करना। हेल्थ वाला फील्ड है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक मेडिसिन है, इंटीग्रेटिव कॉस्मिक मेडिसिन शिवयोग की है, क्योर इज पॉसिबल है फॉर मेडिकल हेल्थ, वो जो है एवरी ह्यूमन बीइंग हैज ए बर्थ राइट टू हेल्थ, वो मैं मेडिकल डॉक्टर से शेयर करूँगा। लेकिन ये शिवयोग कृषि जो है वो मैं करूँगा, तो अब मैं जोर शोर से इंडिया में करूँगा। और इंडिया के साथ साथ जो है मेरी एक और भी इच्छा है कि नेपाल में भी करें। क्योंकि ये सारी बेल्ट जो है ना, वैसे तो श्रीलंका भी है, क्योंकि ये सारी शिव योगियों की बेल्ट है, यहाँ पे शिव योग। और फिर उसके बाद मलेशिया, आई हैव माई ऑब्वियस रीजंस, आई कैन नॉट डू इट, आई वांट टू डू इट। लेकिन इंडोनेशिया में मैं आपको बताऊं, मैं रुका नहीं, मैं बाली में मैं शुरू करके आया हूँ, एंड बाली इट्स डूइंग वंडरफुल। तो ये इट्स वेरी वेरी साइंटिफिक, और सब लोगों का एकदम वो हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको बंद कर देते हैं, अब हमारा प्राइवेट सेरेमनी शुरू होगी। अब थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने सुना जो भी इंटरनेट पे हैं कि शिवयोग कृषि क्या है, इंटीग्रेटिव कॉस्मिक मेडिसिन क्या है। अब मैं इनको दीक्षा देने वाला हूँ, जितने भी किसान आए हैं, और ये इनका ये बताएंगे अपने YouTube में। अच्छा एक चीज़ और काम करना, जरा अभी बंद नहीं करना, एक मिनट बंद नहीं करना, चला दो ना, 1 मिनट चला दो, चला यार, जल्दी चला, नहीं तो सब बंद कर देंगे। ऑन कर दो, ऑन है ना। जितने भी लोग हैं, अब मैं आपसे प्रॉमिस लेता हूँ, अगर आपको YouTube में अपलोड करना आता है तो सच्चे वाले लोग जो हैं, जो आपकी फसल अगर अच्छी हो तो प्लीज शेयर टू अदर्स की शेयर करोगे तो भी मेरे को फायदा तो नहीं होने वाला, नहीं करोगे तो भी मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन जो मेरा एक मिशन है, जो मेरा एक लाइफ पर्पस है, सर्विस टू द गॉड, सर्विस टू द नेचर, सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, वो मैं करता ही रहूँगा। मेरे को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, और जो मिशन है एक पॉजिटिव मिशन, उसको मैं कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, बंद कर।